let's get into the word. This is not, what should I say? I would call it basic elementary things, but when I was praying, I said, like, what I would like to share today. And there's something that we went through the study in the times that we have spent for the past 1 month. And let's say that we would call that a small revision, not a major one. And this is what the Lord put on my heart, so let me share it with you. We all know who our Savior is, and we know His name. We call Him Jesus Christ. If I were to ask each one of us, if this question were to ask to us, who is this Christ? What do we know about Him? What is Christ? What do we know about Him? Let's look at the basic meaning of the word Christ. This, when I was small, I used to always think that this was a surname, Jesus Christ. And then I realized, as I grew up and I started studying the word, I realized that this was not a surname, but it was a title. A title that was given after an achievement. For example, if I were to give you an example, let's say if we are in our academic years, we do this 10 plus 2 plus 3. And after these 15 years, we are awarded a degree. We're given a title of, it could be any faculty, any stream, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce. There is this title that is given. A graduate, a Bachelor of any stream. And this also goes like this, in a similar manner, where you have heard this word, Christ. 2 words, in fact, Christ and Messiah. These words, I don't know how many times we've been hearing through our lives as we were young, we grew up, but how many times have we bothered to actually find out what these 2 mean? Let me tell you, this word Christ comes from a Greek word. ये शब्द जो है क्रिस्त जिसको हम कहते हैं, ये यूनानी शब्द में से आता है जिसका नाम है क्रिस्तोस, और हिब्रानी में इसे मसीहा कहते हैं। ये दोनों शब्द का मतलब एक ही है, चाहे वो क्रिस्तोस हो या मसीहा हो, वो दोनों का शब्द का मतलब एक ही है। अगर इसको हम आमतौर पर जो क्या कहते हैं शब्दकोश होता है, डिक्शनरी होता है, उसमें से अगर हम इसका नाम उसका मतलब ढूंढे तो उसका मतलब निकलता है द अनॉइंटेड वन। ये जनरल इसका क्या कहते हैं अर्थ हुआ। लेकिन हम जिस मसीहा को जानते हैं, जिस मसीहा का जिक्र बाइबल करती है, वो अलग है। ये कौन है? अगर हम ये सवाल पूछें, who is this Christ? Who is this Messiah? Obviously, we know it is Jesus. So what is different than Christ, this Jesus Christ and others? दूसरों में जिसका आमतौर पर वर्णन किया जाता है, जो मसीहा, अरे तुम मेरे लिए एक मसीहा के समान हो, ये मसीहा और यीशु के बारे में, यीशु के बीच में क्या फर्क है? What is the difference? इस मसीह का मतलब है, जो बाइबल बताती है, वो मसीहा जो केवल अभिषिक्त नहीं, बल्कि वो जो दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पण करता है, या जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हालेलुया। फर्क ये है कि वो सिर्फ अभिषिक्त है, जिसको आमतौर पर मसीह कहते हैं, मसीहा कहते हैं, लेकिन ये मसीहा सिर्फ अभिषिक्त नहीं, बल्कि इन्होंने अपने प्राण दिए। अक्सर अगर हम देखें, इसका जिक्र बहुत बार होता है दुनिया में, लेकिन हम जाएंगे वहां पर। उससे पहले
एक बार वो संदर्भ मुझे याद है जहां यीशु अपने चेलों से बात कर रहे थे और उन्होंने एक जगह थी सिजेरिया फिलिपाई जहां पर वो चेलों के साथ आए और वहां पर उन्होंने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने अलग अलग नाम दिए। कोई कहता है तुम एक भविष्य वक्ता हो, कोई यरमाया कहता है, कोई क्या कहता है। फिर यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। आइए देखते हैं वचन में, मत्ती 16:15 से पहले 17 तक का वचन देखते हैं। But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. इसके बाद प्रभु यीशु कुछ एक अजीब सी बात कह देते हैं इनको, जो आमतौर पर यहां सुनने के बाद कोई भी खुश हो जाता कि अपने चेले अपनी तारीफ में कुछ कह रहे हैं। ये उन्होंने ये बात भी कही कि ये तुमने किसी देह से नहीं जाना बल्कि परमेश्वर पिता ने तुम्हें ये बात उनको बताई। अब ये खुश होने के बावजूद प्रभु यीशु उनसे कुछ ऐसा कह देते हैं जो जब मैं छोटा था मेरे समझ में नहीं आया था। देखिए क्या कहते हैं वचन 20 में। Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. अजीब है ना, यहां पर उनकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि तुम मसीहा हो, परमेश्वर के पुत्र हो, और फिर आगे प्रभु कहता है कि आप ये बात किसी से ना बताएं। ये जो बात निकली यहां पर, इसका मतलब है ये प्रभु ने क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा था प्रभु ने कि किसी से मत कहना। जैसा मैंने कहा जब मैं छोटा था और एक कैटेकिज्म क्लास का हिस्सा बना करता था उन दिनों में, तो ये बात हमें बताया गया था कि दरअसल प्रभु चाहते थे कि सब लोग इसके बारे में जान जाएं, लेकिन अगर वो डायरेक्टली कहते उनसे कि आप सभी को बताएं तो शायद उतना वो उस चीज को गंभीरता से नहीं लेते। इसीलिए उन्होंने कहा किसी से ना बताएं, तो जाकर उन्होंने सबको बता दिया, क्योंकि एक विरुद्ध क्या कहते हैं दिशा में जाने की आदत है, फितरत है इंसान की, ऐसा मुझे बताया गया था। और ये काफी साल तक मैं इस चीज को विश्वास करता रहा, जब तक कि मैंने खुद बाइबल का अध्ययन शुरू नहीं किया। उस वक्त मुझे जान पड़ा कि प्रभु ने उनको बताया था क्योंकि उनका समय आया नहीं था। समय क्यों नहीं आया था? किस बात का समय? उनके मरने का समय नहीं आया था। ये बात यकीन मानिए, जब यीशु ने अपने चेलों पर जाहिर की तो प्रतिक्रिया यहां पर पतरस ने दी, अजीब तरह का रिएक्शन दिया। यहां पर वो कैसा था उसको भी देखते हैं। 16 के ही मत्ती के 16 उसके 22 और 23 अध्याय में 23 वचन में। Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. ये देखें, यहां पर पतरस ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी वो एक अजीब बात थी। मतलब अजीब उस वक्त हमको लगेगा, लेकिन दरअसल वो एक प्रेम का भावना था उनका कि वो नहीं चाहते थे कोई भी हमारा कोई भी प्रियजन होता है, अगर वो कहे कि उन्हें वो मरने वाला है तो हम क्या कहते हैं, हमारे जीते जी हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यही बात पतरस ने भी कही, लेकिन यीशु ने उनसे क्या कहा, पीछे हट शैतान। क्या पतरस शैतान था? नहीं, उसने ये कहा कि वो मेरे जीने का कारण नहीं जानता है और उसे मरने से रोकना वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शैतान का काम होगा। वो आया ही था मरने के लिए
और ये बात पतरस नहीं जानता था, बल्कि कोई भी चेले उसके नहीं जानते थे कि उसका कार्य सिद्ध तब होगा जब वो आकर अपनी प्राण देंगे। द क्राइस्ट, तब तक वो नहीं जानते थे इस बात को। इसीलिए वो शैतान का जिक्र उसने वो यूज किया वहां पर, उसे रोकने के लिए, मतलब उसे रोका गया। इसीलिए उसका क्या कार्य था? व्हाट वाज हिज पर्पस? हिज पर्पस वाज टू डाई। एंड फिर ये टाइटल जो है, तब तक यीशु का सिद्ध नहीं हुआ था, या इट वाज नॉट परफेक्टेड। ही वाज जीसस, ही वाज नोन एज जीसस। व्हेन डिड ही एक्चुअली, ये कब उसका उनके ऊपर ये नाम सिद्ध हुआ? कब? आइए रोमी का किताब देखते हैं, रोमी की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 से लेके 4 तक का वचन पढ़ते हैं। Romans chapter 1 verses 2 to 4. The gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Hallelujah. We will dwell a little more on this a little later, but let's understand this. ये वो कब क्राइस्ट बने, या वो टाइटल उन पर कब खड़ा हुआ? देखिए, इतिहास में बहुत ऐसे लोग हो चुके हैं जिनको लोगों ने मसीहा का किताब दिया। There are many who have come in history whom people have referred to as the Messiah. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए मरे, जिन्होंने अपने कार्य के दौरान अपनी जान गंवाई। They stood the sting of time and they died in the process. कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र है, बाइबल में भी कुछ लोगों का जिक्र है। उदाहरणार्थ अगर हम देखें लाजर, जो मरने से जलाए गए थे, तो there were some who were raised as well. But do you know something unique? कुछ खास बात हमारे मसीह के बारे में, वो मरे, पुनः जी उठे, और फिर वापस कभी नहीं मरे। हालेलुया। क्योंकि जिस लाजर का हम जिक्र करते हैं वो फिर मरा, लेकिन यीशु आज भी जिंदा है, इसीलिए हम उसे जिंदा खुदा कहते हैं। हालेलुया। He came to die for us. He died, he rose again, never to die. Now he's coming to judge as a king. That is what is unique. यही एक खास बात है। हमारा मसीहा केवल अभिषिक्त नहीं है, हमारा मसीहा केवल मरा नहीं, वो फिर से जी उठा। हमारा मसीहा सिर्फ क्या कहते हैं, वो कब्र में नहीं पड़ा रहा, वो जी उठा और वो राज करने के लिए फिर से एक बार आ रहा है। हालेलुया। तो इस मसीहा के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या गुण है इनके? आइए कुछ इनके गुण देखते हैं। Let's see some attributes of this Christ whom we worship. Turn with me to the letter of Apostle Paul to the Colossians, chapter 1, verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. हालेलुया। यहां पर देखते हैं, अगर हम इस बात को हम जानते हैं, ये बात अक्सर हम जब और हमारे एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, बहुत बार इसका जिक्र होता है, प्रभु को किसने देखा है, खुदा को किसने देखा है। कई बार इस बात का जिक्र होता है, लेकिन यीशु केवल खुदा नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल फिगर भी है। ही वॉक्ड दिस फेस ऑफ दिस अर्थ, जिसका प्रमाण भी मिल चुका है, और इसकी गवाही संतों ने बाइबल में दी है, तो हम इसे सच मानते हैं। तो इसीलिए अगर प्रभु कहता है, वचन कहता है कि वह इतिहास का एक व्यक्ति है और वो खुदा था, तो यकीन मानिए खुदा को लोगों ने देखा है। हालेलुया। एंड ही इज दैट इमेज ऑफ दैट इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बॉर्न ओवर ऑल क्रिएशन, क्योंकि वो आदि से है।
ये बात को हमने याद रखना है that Christ is God. मसीहा खुदा है। एक और गुण देखते हैं उसका, जहां कहता है कि वो रचनाकार है। Hallelujah. Let's look at Colossians chapter 1 verse 16. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Hallelujah. ये बात भी हम अक्सर बाइबल स्टडीज में हमारे जो जैसे हमारे शेखर भैया कहते हैं बाइबल स्कॉलर्स अक्सर इसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस वचन को तो हमें क्या कहते हैं, वी नो इट एट द बैक ऑफ आवर पाम्स. लेट्स लुक एट इट अगेन. द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1:1-3. Gospel of John chapter 1 verses 1, 2 and 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Hallelujah. This is proof enough. We just read it from 1:16 of Colossians. Now we are reading it here again in John. That everything was created through him. He was the Word. He is God. Through him, everything was created. Everything that we see around us was created. Do we need any more proof that Christ is the Creator? He is also the Word. We need to understand this. Let's look at another attribute of our Christ. He is the fullness of God. मसीहा हमारा परमेश्वर में परिपूर्णता है. आइए उसी को देखते हैं कोलोसियों की पत्री में पहला अध्याय उसका 19 और 20वां वचन. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. 20. Read it. I understand. And by him to reconcile all things to himself, by him whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. The reason why Christ came was to get us back to the place where it all started about creation. And it had to be somebody, ऐसा एक व्यक्ति जो प्रभु के विषय में पूर्ण है, और वही है मसीहा जो परमेश्वर में परिपूर्ण है. उसको भेजा परमेश्वर ने ताकि वो जहां से सब कुछ शुरू हुआ हमें वहीं ले जाए. And that is when, if you remember one statement which God made after his baptism, He is my son, this is my son, in whom I am well pleased. Hallelujah. तभी तक कुछ हुआ नहीं था, बहुत से काम होने बाकी थे, लेकिन तब भी परमेश्वर ने यह आवाज दी कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं पूरी तरह प्रसन्न हूं. Hallelujah. He is the fullness of God. Let's see another attribute of our Christ. He is greater than the powers of darkness. जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं वो उनसे कहीं कहीं सामर्थ्य है. Colossians chapter 2 verses 10 and 15. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Verse 15. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Hallelujah. इस बात को याद रखें, प्रभु ने हमारे लिए एक जय पाई. जय किस पर? मौत पर. मौत किस से?
पापों से, ताकि अभी हमको उनका उससे कभी डर ना लगे। अब जो भी हमारा जो जो जिस बात की हमें उम्मीद है, वी कैन होप फॉर दैट ग्लोरी बिकॉज ऑफ व्हाट जीसस डिड। We have the hope for glory. What does it mean? Where is glory? Glory is when we will be with him for eternity. When we will see his presence, that is the glory we are hoping for. And that was possible, that is possible today because of what Jesus did for us. And he made a public spectacle of all those forces of darkness which was trying to take away his creation from him. That is what tells us and gives us that proof that Jesus is Christ, and the Christ is powerful over all the forces of darkness. Let's look at another attribute. एक और गुण देखते हैं इस मसीह का। प्रभु हमारा सर है, the head of the church. Colossians chapter 1 verses 17 and 18. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. Hallelujah. इस बात का जिक्र हमने काफी अच्छे तरह से स्टडी के दौरान किया था। अगर हम YouTube पर जाकर उन स्टडियों का एक बार फिर से उसको हमारा मेमोरी ताजा करें तो सब कुछ याद आ जाएगा। चर्च के मामले में, देह के मामले में हमने इसके बारे में बहुत काफी डिटेल स्टडी की है, तो उसमें मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। जस्ट a kind of a reminder that Christ is our head, और सर ही है जो उस सारे शरीर को चलाता है, सर ही है जो डायरेक्शंस देता है। क्या हम जिस तरह से हम सेपरेट हुए थे, पहले अलग हुए थे, प्रभु ने अपनी प्रभुता दिखाकर उस क्रूस पर अपने मसीह होने का प्रमाण देकर हमें फिर से एक उम्मीद हम में जगाई है कि हम एकजुट होंगे। हम जानते हैं हमारा सर कौन है। We know who our head is, and we also know that he is in control. So we again have the hope for this glory that we are looking for, because he removed that part which was separating him and us, and that is the death due to sin. He removed that part from us. We removed that part, and now we can hope to be united with him. Let's look at another attribute of Christ. एक और गुण को के तरफ देखते हैं। Christ is the head. Then, if we the church are his body, in him we have fullness. अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु हमारा सर है और कलीसिया उसका देह है, तो उनमें हमारे लिए परिपूर्णता है। आइए उस वचन में देखते हैं, कलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 से लेके 11 पहले देखते हैं पद को, फिर उसके बाद 16 और 17 पद को देखेंगे। And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. In him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Your whole self, ruled by the flesh, was put off when you were circumcised by Christ. You know, when this could be each and everything that we discussed, हर चीज का जिसका वर्णन हमने किया, ये एक स्टडी अपने आप में है। लेकिन आज मैं सिर्फ चंद बातों को याद दिलाने के लिए ये मैसेज आपको दे रहा हूं। कुछ बातें इस मसीह के बारे में हमें याद दिलाने के लिए, ये जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, क्या हमने सही तरह से, सही रीति से इस समय का इस्तेमाल किया है? ये टाइम आनंद मनाने का नहीं है,
ना ही शौक बनाने का है, लेकिन तैयार होने का है। ये तैयार होने का क्यों है हमको? क्योंकि आगे जो समय आ रहा है उसमें हमको समय नहीं मिलेगा कि हम अपने आप को, कलीसिया अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार कर सके। तो ये बात हम किसके देह हैं ये समझना जरूरी है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, जिस तरह से जैसे हम उनके हो गए, ये बातों को हमने ध्यान करना है। और जब तक बार बार इन बातों में हम नहीं रहेंगे, बने नहीं रहेंगे, हो सकता है, मुमकिन है कि हम कई चीजों को भूल सकते हैं। तो ये समय है हमको दिया हुआ है जहां पर कुछ और नहीं हो रहा, धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, धीरे धीरे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब भी बहुत सारा वक्त हमारे पास है। अब भी वक्त है कि जो हमने सुना है, जो हमने अध्ययन किया है, उन बातों पर हम एक बार फिर एक बार फिर उस पर मन लगाएं, एक बार फिर उस पर हम ध्यान लगाएं, ताकि कभी उन चीजों को भूल ना पाए और वो हमारे हृदय पर लिखे जाएं। रिमेंबर, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया, क्या सचमुच the day we accepted him, the day we received him, did he do the circumcision? क्या हमारे हृदय छीले गए थे जिस दिन हमें प्रभु का एहसास हुआ, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया? क्या हम अपना पाप हमें दिखाई दिया था? क्या हमने मन को फिराया? क्या अब भी हम उन्हीं बातों में हैं कि प्रभु का नाम जानते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करते और ये समझ बैठे हैं कि हम प्रभु के बारे में सब कुछ जानते हैं? यदि ऐसा है तो अब भी कुछ बदला नहीं है। वी आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। अब भी हम हमारे पुराने शरीर में ही हैं, पुराने नेचर में ही हैं। अपने आप को धोखा न दें। यह समय हमारे लिए दिया गया है तैयार होने के लिए। सब कुछ लगभग ऐसा मानो कि स्पून फीड किया गया है। हमको सिर्फ हाथ बढ़ाकर उसे ग्रहण करने की देरी है। इतना समय जो बिताया स्टडी में, उसका सारा क्या कहते हैं डिटेल यूट्यूब पे आज मौजूद है। शायद ही कोई ऐसा स्टडी डिटेल में कभी हुआ है। इन बातों को फिर से एक बार याद दिलाने के लिए प्रभु ने मुझे कहा सभी को याद दिलाएं। बहुत लोग जुड़ नहीं पाए थे, बहुत लोगों ने बीच बीच में मिस कर दिया, किसी का कनेक्शन के कारण, किसी का बहुत दूसरे चीजों के कारण। लेकिन आज हमारे पास वो मौका है। इस बात को जान लें, यदि अब भी हमारा पुराना जो देह था वो नहीं बदला है, यदि अब भी हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो हम उसमें पूरे नहीं हैं। We are not in the fullness of Christ. We are fooling ourselves. We will read and read and read, but the world is still attractive to us. हमारे दुनिया आज भी उतनी आकर्षित है और आज भी हमें सारे वो बातें प्रसन्न करते हैं। मुझे डर है उस दिन का जिस दिन सारा लॉकडाउन खुल जाएगा और सब कुछ, कोई बंदिशें नहीं होंगी। उस वक्त हम कैद से छूटे हुए मुजरिमों की तरह यहां वहां दौड़ेंगे। वो सारी चीजें जिस पर अंकुश लगी थी, वो सारी चीजें करने के लिए दौड़ेंगे। एक नजारा हमने देख ही लिया, शराब की दुकानें खुली और लोग पागलों की तरह भीड़ों में लग गए। क्या कहते हैं, लाइन लगाई उन्होंने, सब कुछ किनारे करके। इसी बात का एक प्रमाण देता है जिस दिन ये सारा लॉकडाउन खुल गया, ये सारी बातें यदि हम में मौजूद नहीं है, इनको अगर हमने ग्रहण नहीं किया है, तो वी विल नॉट बी डिसिप्लिन्ड and we will be like crazy people, insane people going back into the world and trying to get 2 महीने 3 महीने का जो चीजें हमने गवाई है या खोई है, उस चीज को दुनिया से पाने के लिए हम व्याकुल होंगे और फिर से एक बार दुनिया को ग्रहण करेंगे। यदि अगर वो वचन हम में है तो हम अनुशासन दिखाएंगे। We will show discipline, we will show restraint, and we will know how to conduct ourselves. We will know how to deal with one another. We will know
how to carry on our lives. That is what the Lord told me to remind each one of us today. We need to be in the fullness of Christ. एक और गुण देखते हैं जो असल में शुरुआत में होना चाहिए था, इस गुण का जिक्र, इस गुण का वर्णन, लेकिन ये भी एक गुण है प्रभु का, और वो कि वो खुदा का एक भेद है. Let's look at Colossians chapter 2 verse 2 and from chapter 1 verse 25 to 27. पहले हम कलुसियों की पत्री उसका 2 का 2 देखते हैं. My goal is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Now we look at chapter 1 verse 25 to 27. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. हालेलुया. इस चीज को जान ले, ये जो पुराने नियम के लोग थे उनके लिए एक भेद था. आज के लोगों के लिए भी कई लोग जो हैं वो प्रभु का नाम जानते हैं, लेकिन मसीह कौन है आज भी उनके लिए एक भेद बना हुआ है. उन्हें कौन बताएगा? ये बातें कौन बताएगा उन्हें? यदि हम यहां पर जिक्र है उसका कि संतों को पता है उसके बारे में. बहुत सारे पुराने नियम के लोग बेचैन थे जानने के लिए कि ये मसीहा कौन है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला. लेकिन ये बातें, ये भेद हम पर खुले हैं, तो हम क्या करेंगे इसके बारे में? चुप बैठेंगे? या जिन लोगों को पता नहीं है क्या हम खोजेंगे? क्योंकि सब बातों का उत्तर वचन में दिया हुआ है. यहीं पर पौलुस कहता है कि मुझे वो वचन देने का और उसकी पूर्णता में वचन बांटने का, खास करके अन्य जातियों के लिए, ये उस पर बोझ डाला गया है. क्या ये बोझ हम पर भी है? क्या हम उन लोगों को बताएंगे जिनको मसीह के बारे में पता नहीं है, जो यीशु का नाम सुन चुके हैं, लेकिन मेरी तरह, जिस तरह से मैं अज्ञानता में था कि मैं यीशु मसीह माने उनका उपनाम समझता था, कि उनका वो सरनेम है, इस तरह से समझता था. लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मसीह माने एक टाइटल है, और वो टाइटल उनको कब मिला? जब वो मरे और मरने में से पुनर्जीवित हुए. हालेलुया. आज वही मसीह क्या हम में है? क्या हम में जीवित है? क्या आज भी वो मसीह एक भेद ही है हमारे जीवन में? पता नहीं है, सुना है, कहीं तो सुना है, याद नहीं आ रहा. क्या ऐसा कुछ है? तो बिल्कुल अपमान होगा वचन का, क्योंकि बार बार मैं हमेशा कहता था भैया से कि जब वो हमारे बीच आए, 2 महीने हमारे बीच रहे, अब भी है, जब वो बातें जब मैं याद करता हूं तो ये सोचता हूं कि ये सब हमारे लिए, मी इंक्लूडेड, ये सब बातें हमारे लिए थी. एक बार रिवीजन, जो लोग जानते थे, नई बातें जिन्होंने कभी नहीं सुना उनके लिए, लेकिन ये वचन सबके लिए था. क्या हमने इन चीजों को ग्रहण किया? क्या कुछ भी परिवर्तन हमारे जीवन में आया इन 2 महीनों में? क्या आज भी हम लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं बेचैनी से, कि जिस दिन लॉकडाउन खुल गया, फिर से एक बार अय्याशी, फिर से एक बार मटर गश्ती, फिर से एक बार दुनिया, फिर से एक बार वही पुराना पापमय जीवन? या अब तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है. शायद कुछ ही दिन बाकी हैं इस लॉकडाउन को खत्म होने में. शायद लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन उसके बाद क्या?
क्या हम तैयार हैं उस जीवन में जाने के लिए, प्रभु के जन बनकर, या फिर से जीवन में जाएंगे उसी तरह से दुनिया के सदस्य बनकर? ये आज मैं तुम पर छोड़ देता हूं। डू स्टडी द वर्ड। अगर इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है जो प्रभु ने दिया है मेरे 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 दिल पर, लेकिन आज इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कलोसियों की पत्री को पूरी तरह से पढ़िए। अगर प्रभु की इच्छा हो तो अगले रविवार को हम फिर से एक बार इन्हीं बातों पर, लेकिन इस बार प्रभु यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल, उसके बारे में हम और बातें करेंगे, उनके बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तब तक के लिए सभी को शालोम। अभी हम इस सभा के अंत में आ चुके हैं, और अंत करने से पहले जिस तरह से हम प्रभु का आशीष लेकर इस सभा का अंत करते हैं, ये आशीष एक गीत के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। ये गीत पहले हिब्रानी में गाएंगे और उसके बाद अंग्रेजी में। प्रभु के जनों, प्रियो, अपने आशीषों को ग्रहण करो और गिनती के 6 अध्याय को याद करो, जहां परमेश्वर ने हारून से कहा था, मेरे लोगों को इस तरह से आप आशीषित करो। The love of God, the grace of Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you till the coming of Jesus once again. May the light that the Lord has lit in your lives shine brightly. May you be called the salt of this earth. May there be flavor wherever you go. Flavor for the kingdom of God, of the kingdom of God. Serve the people around you and let Christ be seen in you. May this week be the best week of your lives yet. May the shalom of Jesus be with you all these days as we have been locked up due to this pandemic. This prayer I make in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. And all God's people say, Amen. So shalom to all of you. God bless you. God willing, till we see again each other next week. Be safe till then. Be in your homes and fellowship with one another. God bless you. Shalom.